وہ بہت غصے میں تھی اور ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے فلیٹ والے یقیناً سن رہے تھے۔ بیگم آپ ناراض نہ ہو، آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، اور کمینی تم۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ تمہیں کیا پوری دنیا میں میرا ہی شوہر ملا تھا صرف شادی کرنے کے لیے؟ وہ اس پر برس پڑی۔ بیگم اسے کچھ نہ کہیں۔ شکیل الرحمان آگے بڑھے۔ کیوں دکھ ہو رہا ہے بے غیرت انسان؟ دیکھیے، آپ کو جو سوال کرنے ہیں اپنے شوہر سے کریں، مجھے نہ گھسیٹیں بیچ میں، اس نے ناگواری سے کہا۔ شکیل الرحمان کافی دیر تک اسے کمرے میں لے جا کر سمجھاتے رہے، جانے کیا سچ جھوٹ مکس کر کے۔ بہرحال انہوں نے اسے مطمئن کر لیا اور وہ 2 گھنٹے بعد وہاں سے جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ شکیل الرحمان نے بعد میں آ کر اس سے بھی معافی مانگی تھی نائلہ کے رویے کے لیے، اور وہ شکیل الرحمان کے تحمل اور میچورٹی سے کافی متاثر بھی ہو چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ شکیل الرحمان باہر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور وقفے وقفے سے اس پر کچھ رومانٹک جملے کس رہے تھے۔ ناشتہ بنانے کے بعد وہ باہر ٹیبل پر لے آئی۔ شکیل الرحمان اخبار چھوڑ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب ایک بہت بڑا پتھر فلیٹ کی کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر آ گرا۔ وہ دونوں بری طرح چونک گئے۔ شکیل الرحمان فوراً اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئے، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ کافی ڈر چکی تھی۔ یہ حرکت یقیناً سکندر کی ہو سکتی تھی، وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ شکیل الرحمان کافی دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑے رہے، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اسے حوصلہ دیتے رہے اور کہا کہ وہ ایسی حرکتوں سے نہیں ڈرتے۔ اگلے دن وہ شکیل الرحمان کے ساتھ شاپنگ پر گئی۔ اسے وہاں سکندر نظر آیا، جو گیٹ پر کھڑا کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ وہ شکیل الرحمان کو وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو نا، ان سے باز آ جاؤ سکندر فیروز۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پتھر سا ہو گیا۔ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے تم ایسی واہیات حرکتیں کرو گے اب؟ وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی اور وہ اسے اسپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ واقعی کافی خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ساری زندگی نفرت کرتی رہوں گی۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتی اندر چلی آئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ شکیل الرحمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے سے گزری۔ وہ تب بھی وہیں کھڑا رہا۔ وہ جانتی تھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی اپنی ہار، لیکن وہ اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی سب سے اداس صبح تھی جب اسے شکیل الرحمان کی موت کی خبر ملی۔ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صدمہ اس کے لیے واقعی بہت بڑا تھا۔ اسے شکیل الرحمان کی موت کا دلی افسوس تھا۔ ان کے ساتھ اس کے زیادہ دن نہیں گزرے، لیکن جتنے دن گزرے حسین گزرے۔ وہ ان لمحوں کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ ان کی موت پر بہت روئی۔ اسے افسوس ہوا سکندر نے اس سے بدلہ لینے کے لیے ان کی جان لے لی۔ وہ خواہ ان دونوں کی نفرت کا شکار ہو گئے اور زندگی کی بازی ہار بیٹھے۔ شکیل الرحمان کے ساتھ وہ اس فلیٹ میں آئی تھی اور ان کے بغیر اسے فلیٹ اداس لگ رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر چیز رو رہی ہو۔ 2 دن اس نے وہیں اکیلے فلیٹ کی کھڑکی کے پاس جاگ کر گزارے۔ اسے سکندر پر حد سے زیادہ غصہ تھا، اور اسی غصے میں اس نے الیکشن سے صرف 2 روز قبل سکندر اور آغا جان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس میں وہ عوام کو بیوقوف بنانے کی باتیں کر رہے تھے۔ ساتھ اس نے کیپشن میں یہ لکھا تھا کہ عوام جن کو ووٹ دینے جا رہی ہے، ذرا ان کے بھی خیالات جان لے، وہ عوام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ویڈیو نے 1 گھنٹے میں 2 لاکھ ویوز حاصل کیے اور 20,000 لوگوں نے شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف دھماکہ ہو گیا۔ ہر کوئی ویڈیو شیئر کر کے آغا جان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے شکیل الرحمان کا دیا ہوا فلیٹ چھوڑ دیا اور ایک ہوٹل میں جا کر رہنے لگی، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ آغا جان اور سکندر کو اچھے سے جانتی تھی۔ ویڈیو نے کمال کر دیا۔ لمحوں میں سکندر اور آغا جان کی محبت لوگوں نے دلوں سے نکال کر پھینک دی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس الیکشن میں سکندر کے لیے جیتنا اب ناممکن تھا۔ ہر طرف سے ان کو گالیاں مل رہی تھیں۔ ان کے اپنے ووٹر ساتھ چھوڑنے کے اسٹیٹس اپلوڈ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنا وال پر سکندر اور آغا جان کی تصویر لگا کر شیم شیم لکھ رہے تھے۔ مخالف گروپ کے MNA نے اسے تھینکس کا میسج بھی کیا تھا، کیونکہ اب ان کے لیے میدان خالی ہو چکا تھا۔ یہ ویڈیو الیکشن کے دن تک چلتی رہی اور لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہوئے بھی ویڈیو کو یاد رکھا۔ الیکشن سے 2 دن قبل ویڈیو وائرل کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ سکندر بھاری اہلیت سے ہار گیا۔
वो जो जीत के इतने करीब खड़ा था, पूरे 70,000 वोटों से बुरी तरह शिकस्त खाई। ये सिकंदर और आगा जान के लिए बहुत बड़ी हार थी। आगा जान की हुकूमत का आखिरी मीनार भी गिर चुका था, लेकिन उसे हमेशा की तरह उन्हें हरा कर खुशी महसूस हो रही थी। 2 दिन तक इलेक्शन का जोर कुछ कम हुआ तो उसने पुलिस से राब्ता किया। वही इंस्पेक्टर जो उस दिन घर आया था, उसके सामने उसने अपना मसला पेश किया। वो हमेशा के लिए होटल में नहीं रह सकती थी और उसे घर जाने के लिए पुलिस की मदद की ज़रूरत थी। वो इंस्पेक्टर की मदद से घर वापस आई। इंस्पेक्टर घर के अंदर तक उसके साथ आया, लेकिन ये क्या, घर में इतना रश क्यों था? कोई आ रहा था और कोई जा रहा था। वो इंस्पेक्टर के साथ चलती हुई आगे बढ़ी और आते जाते लोगों को भी देख रही थी। उसने सफ़ेद दुपट्टे के किनारे से थोड़ा सा मुंह छुपाया हुआ था। कुछ और आगे बढ़ी तो उसे अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगी। उसका दिल धक धक करने लगा। किसी की फोतगी हुई थी, मगर कौन? उसके कदमों में जैसे जान ही ना रही हो। वो थूक निकल कर घबराई हुई आगे जा रही थी। अम्मी नरमीन को तो कुछ नहीं हुआ, कहीं आगा जान ने उन्हें? उसके जहन में कई ख्यालात आ रहे थे। या ताई जान को कुछ हो गया हो। वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अपने बेजान कदमों को घसीटती वो घर की तरफ जा रही थी। पास से चंद औरतें अफसोस करती हुई गुजरी। बेचारा इलेक्शन से हारने के सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उसके चलते कदम रुक गए। सिकंदर? उसके जहन में ये नाम कई बाज गश्त की तरह गूंजने लगा। सिकंदर ने खुदकुशी कर ली। उसके चारों तरफ धमाके हो रहे थे, मगर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उससे हार बर्दाश्त नहीं हुई थी? उसकी वहशत और घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। वो जिस किसी की भी मौत का सोच रही थी, लेकिन उसने सिकंदर की मौत का नहीं सोचा था। वो इस कदर बुज़दिल इंसान था कि हार भी बर्दाश्त ना कर सका। उसने आते जाते लोगों की भीड़ में भागते हुए रास्ता बनाया। तेज तेज कदम उठाती वो आगे जा रही थी। उसने सोचा नहीं था कि सिकंदर इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हैरत और सदमे की मिली जुली कैफियत में वो घर के अंदर तक पहुंची, जहां औरतों का रश था। ताई जान बैठी आंसू बहा रही थी, ताया जान भी रो रहे थे। वो सिकंदर के वालिदैन थे। इकलौते बेटे की मौत का सदमा ही कुछ ऐसा होता है। दूसरी तरफ अम्मी और नरमीन उदास सी शक्लें बनाए बैठी थीं। उसका दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कन रुक ही ना जाए। ये समझकर कि सिकंदर मर गया था, सदमे से उसने आंखें मीच ली। ये क्या हो गया था? कहानी का वो इख्तिताम जो उसने सोचा था, वो तो ना था। ये कैसे हो सकता था? इतनी जल्दी वो कैसे मर सकता है? अभी तो बहुत से हिसाब बाकी थे। उसमें आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। सारे घर वाले उसे देख चुके थे। सामने जनाजा रखा हुआ था। जनाजे के पास औरतें डेरा डाले रो रही थी। वो अपने बेजान कदमों को घसीट कर आगे बढ़ी। लाश पर कफन था। वो कुछ पल खड़ी उस लाश को देखती रही। क्या उसे इस शख्स की मौत पर रोना चाहिए था, अफसोस करना चाहिए था, या अपने बरसों पुराने दुश्मन की मौत पर सिर्फ हंसना चाहिए था? लेकिन वो कुछ भी तो महसूस नहीं कर पा रही थी। किसी ने लाश पर से कफन हटाया। उसे लगा कि वो देख नहीं पाएगी। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसी पल वो खुद से इंकशाफ कर रही थी कि सिकंदर से उसे जितनी नफरत ही सही, लेकिन वो उसका आखिरी दीदार नहीं कर सकती। लेकिन उसने चेहरा घुमाया और देखा, और ये क्या हो गया? कहानी का इख्तिताम बदल गया। पूरी कायनात जैसे रुक सी गई थी। वो लाश सिकंदर की नहीं, आगा जान की थी। वो सदमे से उन्हें देखती रही, जैसे सांसें फिर से जुड़ने लगी थी। वो तेजी से भागकर जनाजे के पास आई। बेचारे ने आज सुबह ही खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इलेक्शन में हार को उन्होंने दिल पर ले लिया था। एक औरत दूसरी औरत को बता रही थी, उसे आगा जान की मौत की खुशी नहीं थी। भले ही उनकी जिंदगी में उसे उनसे कुछ शिकवे, कुछ इख्तलाफात रहे हों, लेकिन वो मुर्दा लोगों से दुश्मनी निभाने की कायल नहीं थी। आज आगा जान की जिंदगी का सूरज डूब चुका था। हमेशा हुक्मरानी करने वाला शख्स आज 4 कंधों का मोहताज हो चुका था। औरतों पर रोब, हुक्मरानी सब यहीं रह गया था। बचपन से जो आगा जान की हुकूमत देख रही थी, आज उसका भी तो इख्तिताम हो चुका था। सामने सिकंदर आंखों में आंसू छुपाए खड़ा था। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसका दिल जाने कुछ अजीब अंदाज में क्यों धड़का। वो उसकी दुश्मन थी। उसे जिंदा देखकर उसे गम होना चाहिए था। वो तो खुश क्यों हो रही थी? आगा जान के जनाजे को घर के आंगन से निकाल कर बाहर ले गए। हुक्मरानी की एक और कहानी मनो मट्टी तले चली गई। किसी और की बादशाहत का सूरज डूब गया।
بے شک زوال ہے ہر عروج کو۔ آغا جان کی موت کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، زندگی ایک بار پھر اسی روٹین میں آ چکی تھی، لیکن بہت کچھ بدل گیا تھا۔ آغا جان کی موت کے بعد تایا جان بالکل سنجیدہ ہو چکے تھے، اپنا روب اور دبدبا سب کچھ آغا جان کے ساتھ ہی دفن کر چکے تھے۔ انہیں شاید آغا جان کی موت کا کچھ زیادہ ہی دکھ تھا، لیکن گھر کے باقی کسی فرد کے چہرے پر اس نے کچھ خاص اداسی نہیں دیکھی تھی، سوائے سکندر کے۔ وہ اداس تھا یا پھر سنجیدہ، وہ سمجھ نہیں سکی، لیکن اس نے دوبارہ سکندر کو پہلے کی طرح نہ کبھی روب جھاڑتے دیکھا، نہ غرور کرتے، اور نہ کبھی حد سے زیادہ بولتے۔ وہ پہلے کی طرح خود پر دھیان دینا چھوڑ چکا تھا، کپڑے 2 دن تک نہیں بدلتا تھا، شیو بھی کئی ہفتوں بعد کرتا۔ شاید آغا جان کی موت نے اسے توڑ دیا تھا، یا الیکشن میں ہارنے نے۔ بہرحال سکندر میں جو انوکھی اور سب سے بڑی تبدیلی آئی تھی، اس نے دوبارہ کبھی اس سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ جب کبھی ان کا سامنا ہو جاتا وہ ادھر ادھر سے نکل جاتا، یا اگر وہ کہیں پر ہوتی تو وہ اس جگہ کبھی آتا ہی نہ، یا کسی ایسی جگہ وہ چلی جاتی جہاں سکندر موجود نہ ہوتا تو وہ اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اس کا رویہ بالکل الجھن بھرا تھا۔ وہ جب اس گھر سے گئی تھی تو اسی سکندر کو چھوڑ گئی تھی جو حکم چلانے والا اور روب دکھانے والا تھا، اور جب لوٹ کر آئی تو یہ ایک نیا انسان تھا۔ اسے سکندر سے نفرت ہونی چاہیے تھی، وہ شکیل الرحمن کا قاتل تھا، لیکن وہ اس سے خاص نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھی، گو کہ وہ اس سے بدلہ لے چکی تھی، اسے الیکشنز میں ہروا کر، اور یہ بدلہ ہی بہت بڑا تھا۔ پھر بھی اسے یوں نفرت ختم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سعدیہ بیگم کو آغا جان کی زندگی میں جو ٹینشن تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر انہوں نے خود کو اسی گھر کا حصہ سمجھنا شروع کیا تھا اور گھر کے معاملات میں حصہ لینے لگی تھی۔ گو کہ تائی ابھی تک ناراض تھیں، لیکن سعدیہ بیگم کو اب ان کی ناراضگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں امی سے باتیں کر رہی تھی جب صوبیہ بھابی نے آ کر اس سے کہا کہ تایا جان انہیں بلا رہے ہیں۔ وہ امی کے ساتھ نیچے گئی جہاں تایا اور سکندر دونوں بیٹھے تھے۔ آئیں بیٹھیں بھابھی۔ سعدیہ بیگم کچھ جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، وہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سکندر سنجیدگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ یہ لیں۔ انہوں نے کچھ کاغذات ان کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ لوگوں کا حصہ ہے۔ اس نے کچھ حیرانگی سے کاغذات لے لیے تھے۔ عشرت ہمیں آپ کا حصہ نہیں چاہیے تھا، وہ بس آغا جان کی ضد تھی۔ ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے پرانے خیالات میں قید رہے۔ آپ لوگ چاہیں تو اپنا حصہ بیچ دیں، چاہیں تو یہیں رہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ تب امی نے کہا کہ وہ اپنا حصہ بیچنے کی بجائے وہیں رہنا چاہتی ہیں۔ انہیں تایا جان کے بدلے ہوئے انداز نے کافی حیران کیا تھا، اور ان کے انکشاف نے بھی، کہ انہوں نے آغا جان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، یعنی کہ تایا جان بھی ان کے پرانے خیالات سے کسی حد تک تنگ تھے۔ سعدیہ بیگم بہت خوش تھیں، اور پہلی بار انہوں نے عشرت کو بہت پیار سے گلے لگایا۔ شاید اگر وہ آواز نہ اٹھاتی تو ایسا ممکن ہی نہ ہوتا۔ جب وہ کچن میں گئی تھیں اپنے لیے چائے بنانے، اسی وقت سکندر بھی کچن میں آیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر فوراً پلٹ گیا۔ وہ اس کے رویے پر حیران رہ گئی، وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ آخر وہ پہلے کی طرح اس سے یہ کیوں نہیں کہتا تھا کہ دوپٹہ سر پر لو، یا مجھ سے نظریں جھکا کر بات کیا کرو، وغیرہ وغیرہ، اور میں اس کے بارے میں اتنا سوچ کیوں رہی ہوں؟ وہ تمہارا دشمن ہے عشرت، کبھی مت بھولو۔ اس نے خود کو یاد دلایا۔ چولہا جلا کر اس نے چائے کی کیتلی رکھ دی۔ تائی بھی کچن میں شاید رات کا کھانا بنانے آئی تھیں، اور اسے نظر انداز کر کے فریج سے کچھ نکالنے لگیں۔ وہ ان سے ابھی تک غصہ تھیں، اور وہ بھی ان کی ناراضگی کو خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن پہلی بار ان کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا اب یہ دوریاں ختم ہو جانی چاہیے، اس لیے اس نے پہل کی۔ چائے پئیں گی تائی؟ تائی نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، انہوں نے غصے سے جواب دیا۔ پی لیں، میں بہت اچھی چائے بناتی ہوں، وہ ان کو منانے کے لیے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم صرف بیوقوف بنا سکتی ہو۔ ان کا غصہ کم نہ ہوا، وہ کریلے کاٹ رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی تائی، میرا دل کرتا ہے کہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں کبھی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ آپ انم کی وجہ سے ناراض ہیں؟ تائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر آپ اس وجہ سے ناراض ہیں تو آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں تائی۔ انم کو اس گھر سے بھگانا میرا احسان تھا، گناہ نہیں۔ تائی نے ہاتھ روک کر حیرت سے اسے دیکھا، وہ بھی چائے چھوڑ کر پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔
आप दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या आगा जान आप सब लोगों के साथ सही कर रहे थे और अनम के साथ भी? एक ऐसे लड़के से उसकी शादी कर रहे थे जिसे उसने देखा तक नहीं था और वो नशा भी करता था। ये मुझे बाद में पता चला। अनम आपकी सगी बेटी थी। क्या एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है? ताई खामोशी से उसकी बात सुनती रही। आप जानती हैं मैं सही कह रही हूँ। आप ये भी जानती हैं कि अनम को इस दलदल से निकालकर मैंने बहुत अच्छा किया था। फिर भी आपकी अना आपकी जिद नहीं मानी। आप सोचें, एक नशा करने वाले के साथ क्या अनम खुश रह सकती थी या आप खुश रह सकती थी? सिर्फ इसलिए कि वो आगा जान का फैसला था और आप कभी उनके फैसले को रद्द नहीं कर सकती थी, इसलिए अनम को जहन्नुम में धकेल रही थी। ताई की आंखों से 2 कतरे आंसुओं के गिरे थे। उसने अपना हाथ ताई के हाथ पर रखा था। ये वो ज़माना नहीं है और ना ही बेटियां भेड़ बकरियां होती हैं कि आप उन्हें किसी को भी दे दो। वो उन्हें नरमी से समझा रही थी। मैं मजबूर थी। अगर आगा जान के फैसले के खिलाफ जाती तो वो मार देते मुझे और तुम्हारे ताया तलाक दे देते मुझे, वरना। ताई ने पहली बार रोते हुए इंकशाफ किया। दूसरों को मारने वाला आज मट्टी तले सो रहा है ताई। अब आप आज़ाद हैं। अपने बच्चों के फैसले आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। अब अनम को घर ले आएं, उसे कबूल कर लें। आगा जान नहीं रहे, ताया बाप हैं अनम के, वो ज़रूर कबूल कर लेंगे उसे। क्या तुम्हारी बात होती है अनम से? ताई ने बेताबी से पूछा। हाँ, तकरीबन हर दूसरे दिन, और वो प्रेग्नेंट भी है। ताई रोते रोते मुस्कुराई। मेरी उससे बात कराओ इशरत। चलें कमरे में। वो दोनों किचन से निकलकर कमरे में आईं। आप जब उसको इतना खुश देखेंगी तो आपकी सारी शिकायतें खुद ही दूर हो जाएंगी। उसने ताई को वीडियो कॉल मिला कर दी। वो घंटों अनम के साथ बातें करती रहीं, रोती रहीं, शिकवे शिकायतें करती रहीं। यही हाल अनम का भी था। वो वहीं सोफे पर बैठी रहीं। कॉल के बाद भी ताई के पास बैठी वो उनसे बातें करती रही। एक बार सिकंदर भी अचानक उनके कमरे में आया था, लेकिन उसे कमरे में देखकर और अपनी माँ के साथ हंसते देखकर हैरान हुआ था। आओ सिकंदर, मैं बाद में आता हूँ, वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गया था। उसने सोचा नहीं था कि वो वहाँ भी हो सकती है। अगली बार पोर्च में वो दोनों टकराए थे और वो संजीदगी से वहाँ से निकल गया। और एक दिन जब वो लॉन में बैठा था ताई के साथ, तो वो ताई के लिए चाय बना कर गई, लेकिन वो फ़ौरन वहाँ से उठकर चला गया। उसे तजस्सुस था आखिर इस रवैये के पीछे है क्या, क्या वजह हो सकती है, वो क्यों ऐसा कर रहा था। अलबत्ता उस दिन के बाद ताई के साथ उसकी और सादिया बेगम की सारी नाराज़गियाँ ख़त्म हो गईं और वो एक बार फिर प्यार मोहब्बत से रहने लगी। और एक नई बात ये हुई थी कि ताई ने ताया के सामने अनम को घर लाने की बात की थी, जिस पे ना वो गुस्सा हुए और ना उन्होंने कोई नाराज़गी दिखाई। बस इतना कहा कि जो तुम्हारी मर्ज़ी। वो रात उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी। ज़िंदगी के कुछ पहलू कितने अलग होते हैं। कुछ चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, हकीकत में कितनी मुख्तलिफ होती हैं। वो कभी कभी इंसान चेहरों को पढ़ने में गलती कर जाता है। समझ में नहीं आता कि जो इंसान के चेहरे पर लिखा है उसके दिल में कुछ बरक्स भी हो सकता है उसके। वो जोया की सालगिरह पर आई हुई थी। सादिया बेगम ने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि 10 बजे से पहले वापस आ जाना, लेकिन जल्दी की कोशिश में भी 12 बज गए। अब उसे घर से निकलने में वो पहले जैसी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता था। सिकंदर ने तो उसकी ज़िंदगी में दखल देना ही छोड़ दिया था। 12 बजे बड़ी मुश्किल से जोया से जान छुड़वा कर वो बाहर आई। घर वो पहले ही कॉल कर चुकी थी कि कोई उसे पिक करने आए, और अब आधा घंटा गुजर चुका था। अब तक किसी को आ जाना चाहिए था उसे वहाँ से ले जाने के लिए, लेकिन उसे लेने सिकंदर आएगा ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने गाड़ी लाकर उसके बिल्कुल पास रोक दी, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो कुछ पल उसे देखती रही, जो संजीदगी से मुंह दूसरी तरफ किए बैठा था। फिर गाड़ी में बैठ गई। उसने संजीदगी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो ये हरगिज़ नहीं भूल सकती थी कि ये वही शख्स था जिससे वो शदीद नफ़रत करती थी, जिसने शकीलुर रहमान का एक्सीडेंट करवाया था। बड़ी संजीदगी और खामोशी से गाड़ी चलाता वो शख्स एक कातिल था, जिसे देखकर ही उसे नफ़रत हो रही थी। उसने चेहरा बाहर की तरफ मोड़ लिया। सड़क पर जलने वाली रोशनी अब कदरे कम होने लगी थी। वो सर गाड़ी की पुश्त पर टिकाकर बैठ गई और हाथों की चूड़ियों से खेलने लगी। आम रूटीन में वो चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, आज खास जोया की सालगिरह के फंक्शन के लिए पहनी थी। उसने 5 मिनट के सफ़र में दूसरी बार नज़र उठाकर उसे देखा था,
लेकिन उसकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं था कि उसके साथ गाड़ी में कोई और भी सफ़र कर रहा है। अभी घर तक काफ़ी सफ़र बाकी था, इसलिए वो आंखें बंद करके सर टिका कर बैठ गई। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी। उसकी आंखें और दिमाग बंजर हो चुके थे। वो काफ़ी थक चुकी थी, अब उसे आराम की ज़रूरत थी। जाने क्यों उसने एक बार फिर से आंखें खोलकर उसे देखा। बैक व्यू मिरर से सिर्फ उसके संजीदा होंठ नजर आ रहे थे। उसने आंखें एक बार फिर बंद कर दी। गाड़ी अब रोड से हटकर कदरे सुनसान रास्ते पर निकल पड़ी थी, जहां ट्रैफिक की आमद कम थी। वो सुकून से आंखें बंद किए लेटी थी, बिना उसे कोई अहमियत दिए, जैसे वो उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक एक बड़ा झटका खाकर गाड़ी रुक गई। उसने तेजी से आंखें खोलकर सामने देखा। वो गाड़ी में चाबी घुमा रहा था। वो बिना पलकें झपकाए उसे देखती रही। वो बार बार चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 4-5 दफ़ा कोशिश के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये चीज़ उसके लिए गैर मुतवक्को थी। अपनी तरफ से वो यही समझी कि शायद पेट्रोल वगैरह या इंजन में कोई मसला हो गया है। कुछ वक्फे के बाद वो एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाकी तमाम बार की कोशिशों की तरह उसकी ये कोशिश भी बेकार गई। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, जाकर बोनट खोलने लगा। हेडलाइट्स की रोशनी में उसके संजीदा भींचे हुए होंठों को वो देख सकती थी। वो बोनट खोले काफ़ी देर तक इंजन के साथ उलझता रहा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो उसे वहीं कार में बैठी देख रही थी और अब थोड़ी बहुत घबराहट भी होने लगी थी उसे। वो ज़्यादा देर अंदर ना बैठ सकी और बाहर निकल आई उसके पास। क्या हुआ? ये उन दोनों के दरमियान पहला जुमला बोला गया था। शायद इंजन खराब हो गया है। वो संजीदगी से इंजन को देखते हुए कह रहा था। उसने भी उकता कर उसे देखा। जहाँ वो खड़े थे वो एक सुनसान मोड़ था, जहाँ हर 10 मिनट के बाद बड़ी मुश्किल से कोई ट्रैफिक गुजरती। सामने स्ट्रीट लाइट्स थीं और एक लाइट के नीचे लकड़ी का एक बेंच रखा था। रहने दो, तुमसे नहीं होगा, किसी मैकेनिक को बुलवा लो। उसने संजीदा चेहरे के साथ एक नज़र उठाकर उसे देखा ज़रूर था, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो जब तुम्हें मालूम है कि तुमसे नहीं होगा? अब की बार वो कोफ्त भरे लहजे में बोली थी। मैं देख रहा हूँ। वही संजीदा जवाब। वो अब एक बहुत बड़े प्लास का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो जानती थी उससे होना कुछ भी नहीं था। ठीक है, तुम बनाते रहो, मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती अपना। जाकर कोई टैक्सी ढूंढती हूँ अपने लिए, वो गुस्से से बोली। इतनी रात को कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, उसने मध्यम मगर तहम्मुल भरा जवाब दिया। तो मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ बेकार में टाइम नहीं ज़ाया कर सकती। वो किसी बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली और जाने के लिए मुड़ी जब सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिद मत करो, तुम जानती नहीं हो इतनी रात को ख़तरा हो सकता है। वो एक बार फिर संजीदा और तहम्मुल भरे लहजे में बोला था। हाथ छोड़ो मेरा। सिकंदर ने हाथ छोड़ दिया। तुम समझते क्या हो खुद को? जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूं। वो अपने अजली मुंह फट लहजे में बोली। बीच के सारे फासले जैसे ख़त्म हो गए। वो उसके लिए वही सिकंदर था जो शकीलुर रहमान से शादी से पहले था, जिससे वो नफ़रत करती थी और उस नफ़रत का बरमला इजहार भी करती थी। मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दे सकता। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, लेकिन आवाज़ ज़रूर तेज़ हो चुकी थी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तुम एक कातिल हो। तुमने शकीलुर रहमान का कत्ल किया है। जाने ये कौन सा मौका था ये बात कहने का, लेकिन जो बात उसके दिल में थी वो ज़ुबान पर आ ही गई थी। वो मज़ीद इस बात को दिल में ना रख सकी। सिकंदर बेयकीनी और हैरत से उसे देखता रहा। तुम्हें क्या लगा तुम कत्ल करोगे और बच जाओगे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, वो उस पर चिल्लाई थी। सिकंदर ने उसकी बातों पर गौर करना छोड़ दिया और बोनट उठाए कुछ जोड़ने में मसरूफ़ था। तुम्हें हिसाब देना होगा, वो उसके पास खड़ी होकर चिल्ला रही थी, लेकिन वो ऐसे बोनट जोड़ने में मसरूफ़ था जैसे उसे सुन ही नहीं रहा। तुम एक घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, नफ़रत है मुझे तुमसे। वो ज़ोर से चिल्लाई तो सिकंदर अचानक गुस्से में आ गया। उसने हाथ में पकड़ा प्लास गाड़ी के फ्रंट शीशे पर दे मारा, जिससे शीशा बुरी तरह टूट गया। जानता हूँ, ये बात याद हो गई है मुझे कि नफ़रत है तुम्हें मुझसे, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि वो उसकी आवाज़ के सामने कुछ बोल ही ना सकी और आंखें खोले हैरत से उसे देख रही थी, जो शायद ज़िंदगी में पहली बार इतने गुस्से में आया था। निकल जाओ यहाँ से। सिकंदर ने पास पड़ी कुछ पेचकस उठाकर उसकी तरफ ज़ोर से फेंके।
वो सहम कर 2 कदम पीछे हटी। चली जाओ मेरी ज़िंदगी से, बहुत दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना, वो हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाया। वो आंखें खोले सदमे और हैरत से उसका ये नया रूप देख रही थी। इस कदर जनूनी वो पहली बार हुआ था। फिर उसने ज़ोर से टूटे हुए शीशे को मुक्का मारा। उसका अपना हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। खून की तेज़ धार बहने लगी और वो आंखें खोलकर उसे देख रही थी, बिना किसी हरकत के, एक मुजस्मे की तरह। अब वो रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो उसे रोते हुए भी पहली बार देख रही थी। क्या मर्द रोते भी हैं? वो भी सिकंदर फिरोज़ जैसा मजबूत मर्द। तुम मुझे बर्बाद कर देना चाहती थी। देख लो, हो गया हूँ मैं बर्बाद। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं हार गया तुमसे। वो रोते रोते चिल्ला रहा था। वो खड़ी उसे देखती रही। वो उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। फिर रोते रोते उसे खुद ही जैसे एहसास हुआ था। उसने हथेली से आंखें रगड़ी और ठंडी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। उसके दूसरे हाथ से मुसलसल खून बह रहा था। फिर उसने गाड़ी से एक पानी की बोतल निकाली और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। फिर जाकर पास रखे लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। वो अभी तक उसे हैरत से देख रही थी, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। बेंच पर बैठे बैठे उसे काफ़ी वक्त हो गया तो उसने खुद ही बोलना शुरू किया था। मुझे याद है, पहली बार जब अम्मी ने मुझे बताया कि इशरत तुम्हारी है, मैं तभी से तुम्हें अपनी मिल्कियत समझने लग गया था। मैं ये सोचने लगा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। बचपन का वो अहद बड़े होकर भी नहीं भूल पाया। हमेशा से तुम्हें अपनी चीज़ समझा। लेकिन जब मैं अमेरिका से वापस लौटा तब तुम बिल्कुल बदल चुकी थी। तुम्हारी नज़रों में रिश्तों के मतलब बदल चुके थे। तुम बगावत सीख चुकी थी। तुम्हें नफ़रत करना आ गया था। मैंने तब भी यही समझा कि तुम मेरी हो। उसकी आवाज़ आहिस्ता हो चुकी थी, भर्राई हुई सी। वो ऐसे बता रहा था जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। उसका मुंह नीचे की तरफ था। वो रो भी रहा था और वो बिना पलकें झपकाए उसे सुन रही थी। तुम मेरी बातों को गलत समझने लग गई, मेरे गुस्से को नफ़रत समझने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता था इशरत। मैं तुमसे कैसे नफ़रत कर सकता था? तुमने मुझे आगा जान से मैच करना शुरू कर दिया था। तुम्हें लगता था मैं उनकी कार्बन कॉपी हूँ और इसलिए तुमने मुझसे भी नफ़रत करना शुरू कर दी, ये जाने बिना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से रोक पाई। वो पहली बार अपनी मोहब्बत का इंकशाफ कर रहा था। जिसे तुम मेरी छोटी सोच और पुराने ख्यालात समझती रहीं, वो मेरी मोहब्बत थी। अगर मैं तुमसे कहता था कि दुपट्टा सर पर लो तो क्या गलत कहता था? मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई ना देखे। हर मर्द यही चाहता है। मैंने कौन सी अनोखी ख्वाहिश कर दी थी? वो रोते हुए कह रहा था। उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं शायद बाकी मर्दों जैसा नहीं था। मुझे कभी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आया। मैं गुस्से वाला था। लेकिन मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता था। तुम मेरी सोच को गलत कह सकती हो, मुझे पुराने ख्यालात का भी कह सकती हो, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। तुम्हें मेरे साथ इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए थी। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? वह अब हिचकियों में रो रहा था और उसके लिए खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। जितनी नफ़रत तुम मुझसे करती थी, इतनी नफ़रत अगर किसी पत्थर से करती तो शायद वो भी किरची किरची हो जाता। देख लो, आज तुम्हारी बेवजह नफ़रत ने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया। मुझे कितना कुछ खोना पड़ गया। तुमसे मोहब्बत करना मेरी ज़िंदगी का सबसे घाटे का सौदा था। मैं मानता हूँ आगा जान थोड़े पुराने ख्यालात के थे, उनके कुछ उसूल गलत थे, लेकिन थोड़ा बहुत समझौता तुम्हें भी करना चाहिए था। तुम संजीदगी से सबसे बाहर निकल सकती थी, लेकिन तुम मुकाबलेबाजी पर उतर आई। तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारे इख्तलाफात आगा जान के साथ थे। फिर तुमने मुझे क्यों बर्बाद कर दिया? मैं शुरू दिन से जानता था कि तुम्हें घर के कैद खाने वाला माहौल पसंद नहीं, इसलिए तो शादी के बाद तुम्हें मैं हमेशा के लिए यूके ले जाने वाला था, एक ऐसी दुनिया जहां तुम खुश रहती। मैंने तो पासपोर्ट भी बनवा लिया था, तुमसे ही सब्र ना हुआ। तुम मुझे इतना बुरा समझती थी, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता था? तुम क्या सोचती थी? क्या मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा या दूसरे मर्दों की तरह तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक बार तुम पर हाथ उठाया था, जब तुम्हारी वीडियो देखी थी। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तुम पर हाथ उठाने के बाद मैं सारी रात ना सो सका और अगले दिन मैंने अपना हाथ ब्लेड से काट दिया। उसने कुछ सोचने की कोशिश की और उसे याद आया।
उस दिन वाकई उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी, जिसे वो ये समझी थी कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी। जब तुम्हें आगा जान ने तहखाने में बंद कर दिया था तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे कुछ नहीं कहा? इतनी मिन्नतें की मैंने उनसे कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हुक्म से मुझे दबा दिया। जब तुम तहखाने में जाग रही होती थी तब कोई बाहर भी नहीं सो पा रहा था। कब हाथ में तेरा हाथ ना दिया। उसे याद आया जब वो तहखाने में थी तो कोई साया रोजाना रात को उसे नजर आता था, जिसे वो चौकीदार समझ रही थी। लेकिन आज उसे पता चला कि वो कौन था। हर सच वो नहीं होता जो हम देखते या सुनते हैं, कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ता है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें वो दर्द देकर जाऊंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे, और तुम मुझे वही दर्द दे कर गई थी। जब तुमने निकाह से इनकार करते हुए ये भी ना सोचा कि उस निकाह के साथ मेरे कितने अरमान जुड़े हैं, कितने बरसों का इंतज़ार था, और तुमने तो ये भी ना सोचा कि तुम्हारे इनकार के बाद मैं दुनिया के सामने कैसे सर उठा पाऊँगा। तुमने तो कुछ भी ना सोचा। तुम बस मुझे और आगा जान को हराना चाहती थी। वो बोलते बोलते कुछ पल के लिए खामोश हुआ, फिर टिश्यू निकाल कर आंखें साफ करने लगा। वो खामोशी से चलती हुई उसके पास बेंच की दूसरी तरफ कुछ फासले पर बैठ गई। उस रात के नए इंकशाफात ने उसे तोड़ दिया था। तुमने उस रात खुद पर गोली चलाते हुए ये भी ना सोचा कि वो गोली मेरे दिल पर लगी थी। तुम मुझे मार देती तो मुझे इतना दुख ना होता, लेकिन तुमने खुद को क्यों सजा दी? मैं जहाँ इतना सब बर्दाश्त कर रहा था, वो एक गोली भी बर्दाश्त कर लेता। मेरी जान छूट जाती तुम्हारी नफरत से। तुमने कहा था ना मैं बुज़दिल हूँ इसलिए गोली नहीं चला सकता। मैं बुज़दिल नहीं था, वो मेरी मोहब्बत थी। और तुमने मेरी ज़िंदगी में मुझे जीते जी मार डाला जब तुम मुझे हराने के लिए अपनी उम्र से 2 गुने बड़े आदमी से शादी करके आ गई थी। क्या तुमने सोचा कि उस दिन मुझ पर क्या क़यामत गुजरी होगी? मैं किन किन सड़कों पर रोता रहा हूँ। मैंने कितनी बार खुदकुशी की कोशिश की थी। उस दिन तो तुमने मुझे तोड़ ही दिया। और तुम गलत थी। तुम खुद ही खुद सारे अंदाजे लगाती हो और अपने जहन में गलत फहमियाँ पालने लगती हो। तुम्हें आज भी लगता है कि शकीलुर रहमान का एक्सीडेंट मैंने करवाया था। तुम कितनी बदगुमान हो मुझसे। वो एक्सीडेंट आगा जान ने करवाया था और तुमने उसका बदला भी मुझसे लिया। इलेक्शन से 2 दिन कबल मेरी वीडियो वायरल कर दी। लेकिन इलेक्शन हारना मेरी हार नहीं थी, मैं तो बहुत पहले से हार चुका था। मेरी हार वो नहीं थी जब मैं इलेक्शन हारा था। मेरी हार तो वो थी जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तुमने हमेशा मेरे रवैये को याद रखा। क्या कभी अपने रवैये पर भी गौर किया तुमने? शादी वाली रात तुमने अनम को घर से भगाया। तुमने भरी महफिल में निकाह की कबूलियत से इनकार कर दिया। तुमने मुझे दर्द देने के लिए खुद पर गोली चलाई। एक 60 साल के इंसान से शादी करके आ गई। इलेक्शन से 2 दिन कबल मेरी वीडियो वायरल की। सच बताओ, क्या तुम्हारा रवैया नॉर्मल था? क्या तुम गलत नहीं थी? इशरत, तुम अगर बहुत ज़्यादा भी सोचो तब भी तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारने के अलावा मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। उसने सर उठाकर सिकंदर को देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसने भी पहली बार उसकी आंखों में देखा। वो आंखें झूठ नहीं बोल रही थी, और वो कैसे झूठ को सच मानकर जीती रही थी। अब वो कैसे नज़रें मिला पाएगी उस शख्स से, और कैसे सामना करेगी खुद का? ये तुम्हारी और आगा जान की लड़ाई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सज़ा मुझे मिली। मैं तो खामखा ही मारा गया तुम लोगों की नफ़रत में। आगा जान नफ्सियाती मरीज़ थे। उनके कुछ ख़यालात वाकई पुराने और दकियानूसी थे। उनके कुछ उसूल भी गलत थे। उन्हें हमेशा से हुक्मरानी की आदत रही थी, और अपनी ये आदत वो शहर में भी साथ लेकर आए थे। और वो एक हार बर्दाश्त नहीं कर सके और ख़ुदकुशी कर ली। लेकिन हम सब तो इंसान हैं ना, और इंसानों की दुनिया में रहने के कुछ उसूल होते हैं, जीने के कुछ तरीके होते हैं, जिन्हें हम पिंजरा या कैद कहकर बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो उसूल हमें जीने की वजह देते हैं। और मेरी नज़रों में नॉर्मल तो तुम भी नहीं थी। छोटे से इख्तलाफ को अना का मसला बनाकर तुमने खुद को कहाँ ला खड़ा किया। कितनों की ज़िंदगियाँ उलझा दी। क्या हो जाता अगर तुम थोड़ा सब्र या समझौता कर लेती? तुम उनको हराने की कोशिश करती रही और वो तुम्हें, और आखिर में तुम दोनों हार गए। क्या तुमने देखा आखिरी बार उनका चेहरा? उनकी सारी नफरत दुनिया में ही रह गई। वो सब कुछ छोड़कर चले गए। और तुम्हारे हाथ क्या लगा? तुम भी तो उतनी ही खाली रह गई। कितना नुकसान कर दिया तुमने खुद का और हम सब का।
नफ़रत के रास्ते में सिर्फ हार मिलती है, जीतने के लिए मोहब्बतों का सहारा लेना पड़ता है। वो बोल रहा था और उसने जाने कब सुनते सुनते अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी, तुम्हें एक बार तो मुझे बताना चाहिए था। तुम जानते मैं इतनी ज़हीन नहीं हूँ जो आंखें देखकर मोहब्बत पहचान लेती। वो रोते रोते कह रही थी और उसने सिकंदर का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। इशरत, मोहब्बत का इजहार ढोल बजाकर नहीं किया जाता, बस मोहब्बत थी तो थी। अब मैं सबके सामने ऐलान नहीं कर सकता था, तुम्हें खुद समझना चाहिए था। मेरी पूरी ज़िंदगी किताब की तरह है, जिस सफ़े को खोल कर देख लो वहाँ सिर्फ तुम होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की। उसने सिकंदर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वाकई मोहब्बत करने वाले ढोल नहीं बजाते, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है, हर बात कहने की नहीं होती। उसकी इतनी नफ़रत के बावजूद भी वो शख्स उससे मोहब्बत करने के लिए मजबूर था। उसके पास बैठे शख्स की हर बात सच में डूबी हुई थी और वो खुद को उसके सामने एक ज़रा भी नहीं महसूस कर रही थी। वो खुद को दुनिया की अहमक तरीन लड़की समझ रही थी। थोड़े से समझौते से सब कुछ बदल सकता था, ज़िंदगी कुछ और हो सकती थी और वो उस शख्स से नज़रें मिलाने के काबिल तो रहती। वो खुद के वजूद को सिकंदर के सामने एक ज़र्रे के बराबर समझ रही थी। वो उससे माफ़ी नहीं मांग सकती थी। जो वो कर चुकी थी वो माफ़ी से कहीं बढ़कर था। उसने खामोशी से अपना सर उसके सीने पर रख दिया। वो उसकी धड़कनों को सुन सकती थी। उसने भी अपने बाजुओं में उसे भींच लिया। वो होश संभालते ही उस शख्स से नफरत करती आ रही थी। कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में, बचपन से जिस इंसान को कत्ल करने की ख्वाहिश रही, एक रात ऐसी भी आएगी जब उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो अपने दिल के सामने बेबस हो चुकी होगी। आज उसके ज़रा से इजहार ने उसे तोड़ दिया था। उसकी सारी नफ़रत तिनके की तरह बहती चली गई और वो सोच रही थी कि कभी कभी इंसान कुछ चेहरों को समझने में कितनी बड़ी गलती कर जाता है। सही कहा था उसने, मोहब्बत करने वाले ढोल लेकर नहीं घूमते जो सारी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहें हमें तुमसे मोहब्बत है। जो इजहार नहीं करते वो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं।